Okay, bacha party, we are going to continue with the magnetism. So magnetic field at the center of a circular current carrying loop. तो एक circular current carrying loop है. What would be the magnetic field at its center? So we will deal with the calculation part here. Okay. So let's say this is basically a loop. Okay. This is basically a loop, and at its center you need to find out the magnetic field. So you have to find out the magnetic field. So this is basically current carrying. How much is the current which is being carried here? I amount of current is being carried here. This is a circular loop which has got a radius r. Let's say we have taken a small length of it, that is dl. Okay. So what will be the magnetic field now? First of all, let's understand the direction. ये ऐसे जा रहा है, ठीक है. This is going like this. So if I place it like this, तो आपका ये अंदर की तरफ है ना. This is basically inside. भाई ऐसे पकड़ो ना, तो ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ. ऐसे भी घुमा कर होगा तो वो भी यहाँ पे कैसा होगा देखो. लेट्स से हेयर ऑल्सो इट्स ये भी अंदर. अगर इस तरफ आते हैं हम, देखो इस तरफ, सो हेयर ऑल्सो अंदर की तरफ, ठीक है. सब में भाई साहब अंदर की तरफ ही आ रहा है. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द बोर्ड और द प्लेन or the paper that you are using. Okay, are we clear? Okay, so we have found out the direction. So it means that the magnetic field which is generated by each and every part of this entire wire at this center will keep on adding. There is no subtraction, it will keep on adding. Okay, so here we can say what is the value of dB in the first place. dB we know, applying Biot-Savart's law, it will be mu naught I by 4 pi I dl sin theta, I dl sin theta upon r का स्क्वायर, है ना. देखो अभी when we actually draw tangent और ये रेडियस, ठीक है. टेंजेंट और रेडियस में बच्चा पार्टी कितना एंगल होता है? तो ये टेंजेंट ही तो है भाई साहब, देखो, ठीक है. इस पॉइंट और इसमें तो 90 डिग्री होगा. सो दिस sin theta will have a value of what? sin theta will have a value of sin 90. सो ऑब्वियसली बायो-सावर्ट लॉ को अगर हम लगाते हैं तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये हो गया आपका dl sin 90 अपॉन r का स्क्वायर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो ऑब्वियसली दिस विल बी हाउ मच? 1 म्यू नॉट आई dl 4 पाई हो गया ये. सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई dl बाई r का स्क्वायर. ये हो गया आपका db. ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम db को ऐड करते जाएंगे, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग. सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई r का स्क्वायर, सॉरी i, ठीक है. ये i बाहर आ गया और ये dl रह गया अंदर. नाउ अंडरस्टैंड दिस. dl मीन्स स्मॉल सेगमेंट्स में आप dl को अगर ऐड करते जाएंगे, सो इट इज गोइंग टू गिव यू द लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, and length of a circle is nothing but the circumference. So that will be 2 pi r. Okay, so this will be mu naught I by 4 pi r square into 2 pi r. Are we clear on this one people? अभी कर लो भाई साहब. यहाँ पे मैं 4 pi को नहीं उड़ाना चाहता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है. बट अगर ये हो गया कैंसिल तो आपका ये पाई और पाई कैंसिल हो गया भाई साहब. यहाँ पे 2 और 2, तो दिस विल बी हाउ मच? म्यू नॉट I by 2r. सो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट I by 2r. नाउ अंडरस्टैंड दिस. अगर आप वाकई में इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, सो इट विल बी म्यू नॉट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7. ये आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड एट द सेंटर बाई अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. सो बेसिकली dB will be equal to mu naught I 4 pi dl. So this will be the final one, mu naught I by 2r. Okay, all right, oh people. So instead of a single loop there is a coil of n turns. So if instead of a single loop, what did you find out? What was the result भाई साहब? आपका b is equal to mu naught I by 2r. So this is for one turn. ऐसे ही अगर भाई साहब जैसे सोलेनॉइड में होता है, बहुत सारे टर्न्स हो गए तो क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है. सो n mu naught I by 2r. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पीपल. इफ इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लूप देयर इज अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑल, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच? mu naught n I by 2r. सो इफ फॉर इट इज one loop carrying a current of I with a radius of r, it will be mu naught I by 2r. If it is for n loops, n number of loops, each will be behaving like a separate magnet. ठीक है. एंड दैट्स द रीजन वी यूज अ सोलेनॉइड.
हमारा जो सोलेनॉइड यूज होता है उसमें हर एक कॉइल आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. ईच कॉइल इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड ईच ऑफ दीज फील्ड्स एट द सेंटर गेट एडेड अप एंड इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. ठीक है. सोलेनॉइड इज बेसिकली अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सोलेनॉइड इज योर होम डोरबेल. ठीक है. जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है और वो अट्रैक्ट करेगा इसको, ढंग से बजेगा वो. ठीक है. और जैसे आप स्विच को छोड़ देंगे वो स्प्रिंग वाला स्विच होता है, सो इट अगेन गोज बैक. सो द क्लासिक एग्जांपल हियर ऑफ सोलेनॉइड इज इन अ डोरबेल. ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ओके. सो अगर आपका द फील्ड dB लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू S. तो आप अगर देखोगे भाई साहब ये जो फील्ड है, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड. अभी देखो हम यहां पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है. अभी हमने सेंटर पे इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, कितना था, μ0I/2R. नाउ लेट्स से इफ वी हैपन टू एक्सटेंड इट्स फर्दर, लेट्स से एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. सो दिस इज द एक्सिस. वी फाउंड आउट दैट एट दिस प्लेस, एट दिस पॉइंट बच्चावाड़ी, let's say at this point what is it, μ0I/2R. that is something that we have already proved. Now for a circular current carrying loop, if we happen to take a point on the axis of this loop, axis मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई आपका टायर है, ये घूम रहा है तो उसका एक एक्सिस पे घूमता है वो, तो इस एक्सिस पे अगर मुझे पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, what will be the, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है. The field dB lies in the plane of the paper and is perpendicular to S. Look at this people. ठीक है. यहां पे आपका देखो S है. S is basically the distance of this point from a segment of the wire DL which you have taken. Let's say current is flowing in this direction. So this is basically DL that you have taken. मुझे बताइए यहां पे, अभी देखो यहां पे आपने क्या किया, सारे मैग्नेटिक फील्ड्स आपके ऐड हुए थे. Why? Because all were pointing in the same direction, that is inside the paper or basically the plane of the board. Here will it be the same? So let's examine this people. क्योंकि आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि whether you have to do an addition or whether you have to do a subtraction. ठीक है. Okay, so supposedly this is basically a distance f और let's say axis का distance है आपका x. ठीक है. Now let's look at this people. इस वजह से यहां पे आपका कितना फील्ड क्रिएट हो रहा है, dB. dB आपका जो है परपेंडिकुलर है. कैसे बताइए. देखो द फील्ड dB लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल द फील्ड dB, अभी देखो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब. ठीक है. ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है भाई साहब. The field dB lies in the plane of the paper and is perpendicular to S. But obvious होगा भाई साहब ये S जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा ये फील्ड. क्या ये समझ में आ रहा है. देखो इस सेगमेंट को लिया है हमने DL. ठीक है. ये जा रहा है ऐसे. ठीक है. ऐसे जा रहा है और ये आपका भाई साहब आपने ऐसे खींचा है इस पॉइंट तक. यहां पे एक पॉइंट है. ठीक है. मुझे बताइए ये जो dB है ये कैसे होगा भाई साहब. ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, समझ में आ रहा है, ये ऐसे जाएगा और ये S से ये परपेंडिकुलर होगा. ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं. इट इज अ 3D थिंग. ये आपका सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर है, मतलब आपकी तरफ है, देखो ऐसा चरखा है वैसा सर्कुलर कॉइल. ऐसे करंट जा रहा है. करंट अगर ऐसे जा रहा है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो आपका फील्ड कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ है ना बच्चे. ठीक है. अभी आप ऐसे आकर इस पॉइंट पे आइए, एस पॉइंट पे, तो आपका देखो ये फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा. मतलब इस फील्ड से ये वाला परपेंडिकुलर होगा. देखो ये वाला जो आपका जो डिस्टेंस है इस पे ये dB परपेंडिकुलर होगा. आर यू एबल टू इमेजिन दिस पीपल. ठीक है. आर यू एबल टू इमेजिन दिस भाई साहब. एनी तकलीफ. ये आपका फील्ड, ये आपका भाई साहब सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर. यहां पे भाई साहब एक पॉइंट है, तो मैंने एक DL लेंथ लिया और इसको पहले ज्वाइन कर दिया. अभी इस DL लेंथ में भाई साहब ऐसे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे, तो इसका मतलब ये तो ऊपर की तरफ जाएगा. लेकिन ऊपर की तरफ कैसे, इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो लेंथ है इस पे परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. इट विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर. सो द फील्ड dB लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. प्लेन ऑफ द पेपर पे लाई करेगा ये. ठीक है. इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर. मतलब देखो ऐसे जा रहा है ना, तो ये जो पेपर लिया हुआ आपने उसी प्लेन पे ये लाई करेगा, ऐसे जाएगा ये. ठीक है. लेकिन उसी पेपर पे रहेगा, मतलब XY एक्सिस पे रह जाएगा ये. ठीक है. सो दिस विल बी dB XY एक्सिस पे रहेगा. ऐसा नहीं कि Z एक्सिस पे आ रहा है, Z एक्सिस पे नहीं है, ये XY एक्सिस पे ही है. इसके पहले जब आपने यहां पे लेने की कोशिश की थी तो यहां पे भाई साहब आपका इस तरफ था. ठीक है. सो दिस इज dB. नाउ व्हेनेवर वी एक्चुअली टेक अ वेक्टर, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द वेक्टर वी एक्चुअली रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट्स. तो अगर आप किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द वेक्टर इटसेल्फ. सो लेट्स से दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई. अभी नाउ अंडरस्टैंड दिस पाई. ठीक है. सो बच्चा पार्टी, लेट्स से दिस एंगल इज पाई.
समझ में आ रहा है ये? मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो। ये तो 90 हो गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ठीक है। छोड़ो इस एंगल को, छोड़ देते हैं अपन इस एंगल को, लेट्स लीव इट। ये फाइव है, ओके। नाउ 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 इफ आई हैपन टू ड्रॉ दिस, देखो मैंने dB को क्या किया है, इसमें और इसमें रिजॉल्व किया है। व्हाट विल दिस एंगल बी 90। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चा वाड़ी 90 माइनस फाइव, ठीक है। नाउ dB इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो वी नो दैट दिस इज 90। समझ में आ रहा है? ये वाला 90 है, तो अगर ये इस 90 में से ये वाला 90 माइनस फाइव हो गया तो ये कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड वाई? ऑब्वियसली आवर अजम्पशन इज दैट दिस एंगल इज 5, बट डू यू अंडरस्टैंड वाई दिस एंगल इज 5? Simple calculations, okay. 5, this is 90, so obviously this will be 90 minus 5. Now come to this angle, which is 90. Out of this is 90 minus 5, so obviously this will be 5. ठीक है, clear है? Now dB, if we resolve this, so perpendicular component will be how much? dB perpendicular will be equal to how much? dB cos of 5, and this will be how much? dB, the x-axis में जो component होगा, this will be dB sin of 5. Making sense, people? Is it making sense? Now understand this, you are moving throughout the wire. When you come to this point, you are going to do the same thing. When you do the same thing, what will happen? This point will have a component in this direction, ठीक है। सो आपका ये वाला dB और ये वाला dB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी आप बोलेंगे साइडवेज तो रह गया, साइडवेज में भी ऐसा होगा, एक का dB इस तरफ होगा, एक का dB इस तरफ होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑल थ्रू आउट द वायर, all these perpendicular components are going to get cancelled out, but this will remain, which means that what will be your resultant? This dB sin phi. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. Let phi be the angle between OP and CP. So let's say आपका अगर phi angle हो गया किसके किसके बीच में भाई साहब, this is basically OP and this CP, ठीक है। Then dB can be resolved into two rectangular, dB sin phi along the x-axis. This is dB sin phi along the x-axis and dB cos phi along perpendicular to the x-axis. This component will cancel. This component will cancel. If we happen to consider all the points throughout the current carrying loop, then this component is going to cancel. Each part here will have a corresponding point here wherein the perpendicular components are going to cancel out. dB cos phi पूरा पूरा आपका cancel हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या भाई साहब? dB sin phi. Are we clear on this one, people? dB cos phi perpendicular to the axis. Now dB is equal to how much? Mu naught by 4 pi I dl sin theta by s का स्क्वायर, ठीक है। I dl sin theta by s का स्क्वायर। Now understand this, आपका देखो यहाँ पे dB क्या होता है? by Biot-Savart's law, this is nothing but Biot-Savart's law, ठीक है। this is nothing but Biot-Savart's law. So mu naught by 4 pi I dl sin theta by s का स्क्वायर। ये sin theta है क्या? What is this sin theta? बताइए साइन थीटा क्या होता है? आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल, ठीक है। इस पॉइंट से भाई साहब इस पॉइंट का एंगल, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल कितना हो जाएगा? देखो आपने थोड़ा अप्लाई करो, देखो ये आपका करंट कैरिंग वायर था, यहां पे भाई साहब कोई पॉइंट है, तो हमने ऐसा लिया था ना, समझ लो ये डीएल सेगमेंट है, ये वाला थीटा हो गया आपका, तो आपका डीबी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ये था भाई साहब आपका, है ना, ठीक है। दिस वाज इट, ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट इज थीटा। यहां पे इसको मत देखो, थीटा 90, बताओ थीटा कितना होगा? अरे देखो भाई साहब, हाँ तो ये वाला पॉइंट से इस वाले का एंगल कितना हो जाएगा? नहीं 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 90 माइनस 5 नहीं, ध्यान से देखो, ये डीएल है, डीएल किस तरफ है? इस तरफ है, ऐसा है ना, देखो गोल, ठीक है। तो डीएल किस तरफ है? इस तरफ है, यहां पे पी है, अब बताओ 90। समझ में आ रहा है? ये कंपेयर कर पा रहे हो? डीएल किस तरफ है भाई साहब? इस तरफ है, ये तुमने लिया भाई साहब पी, पी तक पहुंच गए। मुझे बताओ ये वाला एंगल जो बन रहा है ये वाला कितना हो जाएगा? 90। समझ में आ रहा है? ये दिस इज हाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 90। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वाला जो एंगल है देखो टें, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 90, ठीक है। आपका करंट कैरिंग डीएल सेगमेंट और पॉइंट पी में जो एंगल होता है दैट इज बेसिकली साइन थीटा, दैट थीटा इज कंसिडर्ड। सो हियर आल्सो करंट कैरिंग सेगमेंट डीएल एंड पी में जो एंगल बन रहा है वो है आपका 90। सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 90। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई एस का स्क्वायर हो गया ये।
Are we clear? Mu naught by 4 pi I dl s का स्क्वायर, where s is this distance. Now s you can resolve. s का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. सो इफ यू हैपन टू रिजॉल्व दिस विल बी r का. सो यहां पे आपका कितना हो गया बोलो? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखो यहां पे हमने क्या निकाला, दिस वाज हाउ मच, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई s का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया dB. अभी dB का अपन dB cos phi और dB sin phi निकालेंगे. dB cos phi को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज बेसिकली कैंसिलिंग आउट. तो अभी आपका क्या होगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड dB sin phi होगा, ठीक है? विच मीन्स म्यू नॉट 4 पाई IDL बाई s स्क्वायर साइन ऑफ phi. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi. मतलब सारे सेगमेंट्स को ऐड करते हुए हम कहां पहुंचेंगे? सारे सेगमेंट्स को ऐड करते हुए हम कहां पहुंचेंगे? B will be equal to integration of dB sin phi. So now we know that we have seen, भाई ऐसा है ना, ये A है और ये आपका भाई साहब कितना है? नहीं, ये आपका S है, ये कितना है? A है और ये वाला X है ना, कितना था सॉरी, ये आपका X है, ये R है, ये S है, ठीक है? सो आपका भाई साहब यहां पे हो जाएगा दिस. So this will be dB sin phi. Sin phi is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो लेट्स से आपका a by s है, ठीक है? दिस सॉरी ये आपका a है, ये आपका x है, ठीक है? सो a by s हो गया आपका phi, ठीक है? दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? phi. तो dB की वैल्यू डालो यहाँ पे, कितनी आई है आपकी? म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई s का स्क्वायर, ठीक है? सो म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL 4 पाई s का स्क्वायर इंटू a बाई s. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Since mu naught and I are constants, तो हम इसको बाहर फेंकेंगे. and S and A are same for all points on the circular loop. तो इन सबको हम बाहर फेंकेंगे, सिर्फ एक ही चीज बच जाएगा आपका DL. अभी ये DL को जब हम ऐड करते जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 पाई r, है ना? सर्कुलर लूप है भाई साहब. तो इसको अगर हम DL को इंटीग्रेट करेंगे तो रेडियस आपका कितना है? A है ना? देखो ये सर्कुलर लूप है, रेडियस कितना है भाई साहब आपका? A. 2 पाई r हो जाएगा ये. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DL, दैट मीन्स 2 पाई r, ठीक है? 2 पाई a लिख दीजिए भाई साहब यहाँ पे. तो कितना हो गया आपका? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर अपॉन 2s का क्यूब, ठीक है? आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस डेरिवेशन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है? क्या हो गया भाई साहब? Okay, as the direction of the field is along the positive x direction, so we can write, क्योंकि positive x direction में है. Now if we are expressing it, तो हम भाई साहब यहाँ पे अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें? पॉजिटिव x direction में. हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस? एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज along the positive x direction. पॉजिटिव x direction में आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप. सो अगर वेक्टर में एक्सप्रेस करना है, यहाँ तक तो आप एक्सप्रेस कर ही चुके थे. देखो यहाँ पे क्या था आपका? म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर अपॉन 2s का क्यूब, है ना? what was your result here? B is equal to mu naught I a का square upon 2s का cube. Now we know that s is equal to what? A square plus r square. So we can write this as I a square upon, यहाँ पे s का स्क्वायर हमको मालूम है कितना है? a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर है कि नहीं भाई साहब? s स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर r का स्क्वायर, जो भी लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मुझे s क्यूब लिखना है तो बेसिकली s विल बी हाउ मच? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं. सो s स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी s क्यूब, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हाफ इंटू 3. सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 रेज टू 3/2, ठीक है? सो a स्क्वायर plus r square raised to 3/2. That is going to be your resultant magnetic field, and this resultant magnetic field is only going to act along the positive direction of x axis, ठीक है? So obviously बात है कि अगर हम इसको भाई साहब वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, it will be I cap, ठीक है? वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा बाटी, so this will be r square plus a square, ठीक है? 3/2. तो अगर ये हो गया यहाँ, ठीक है? So this will be basically your b will be equal to mu naught I a square 2 r square plus a square 3/2 I cap because it is in the positive direction of x axis, ठीक है? If there are n coils, so this is for one coil.
तो ये आपका एक्सिस में है, दिस इज बेसिकली ऑन द एक्सिस. इफ देयर आर n कॉइल्स देन दिस विल बी द आंसर. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो आपके भाई साहब अभी तक अपन ने जो जो कर लिए हैं उसमें ये सब फॉर्मूलेज आ जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप. अभी अगर आप देखो इसी फॉर्मूले को सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप में निकालते हैं तो आर की वैल्यू तो जीरो हो गई है ना, सेंटर हो गया. ये ए की वैल्यू है लेकिन अभी आर की वैल्यू क्या हो गई? जीरो. अभी आपने डिराइव किया था, देखो डिराइव किया था जब आपने सेंटर पे लिया था, देन यू आर डिराइव्ड द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला से आप सेंटर पे भी आ सकते हैं. ठीक है, तो आपने जब यहां पे इसको डिराइव किया, जाओ ना बच्चा पार्टी, क्या हो गया? ठीक है, तो आपको कितना आया था? देखो म्यू नॉट आई बाई 2r आया था. सेम फॉर्मूला आपके लास्ट वाले डेरिवेशन से भी आ सकता है. तो लास्ट वाले डेरिवेशन में क्या था भाई साहब आपका? तो लास्ट वाले डेरिवेशन में यहां तक आए थे आप, तो इस टाइम आपका r क्या हो जाएगा? जीरो. इट विल बिकम जीरो. सो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? 2a क्यूब हो जाएगा. ये स्क्वायर और a कैंसिल, वही सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी. ठीक है, दिस r विल बिकम जीरो व्हेन यू आर टेकिंग द सेंटर. ओके, सो आपका भाई साहब ये सारे आंसर्स हो गए. b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2a क्यूब, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a. इन द सेम वे b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए बाई 2 पाई a क्यूब. ठीक है, एट द एक्सियल पॉइंट्स लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल. So if the axial point is far away from the coin, what can we assume? If the axial point, so obviously बात हो जाएगी भाई साहब r is 2 greater than a. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, let's say ये है आपका भाई साहब एक सर्कुलर लूप और यहाँ पे एक्सियल पॉइंट है. दिस एक्सियल पॉइंट इज हाउ मच? सो r is far, this is basically your r and this is your a. तो यहाँ पे भाई साहब r is far greater than a, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा लिख रहे थे ना, 3/2. तो यू कैन इग्नोर दिस ए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 3/2 डिनोमिनेटर में, तो ये आर क्यूब आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी आर क्यूब. सो इन दिस फॉर्मूला यू कैन प्लेस आर क्यूब. ठीक है, क्लियर है? 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा. द फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड फॉल्स फार ऑफ द क्यूब एट द डिस्टेंस ऑफ द करंट लूप एट एन एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल. अगर भाई साहब एक्सियल पॉइंट आपका ऐसा है, यहाँ जो आर लिया है आपने, दिस इज इक्वल टू ए, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 है ना, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो आपका भाई साहब यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो दोनों भी काम हो जाएगा आपका. ठीक है, सो आपका फॉर्मूला क्या है भाई साहब? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. आई कैप हो जाएगा भाई साहब. तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर कॉइल. दिस डिस्टेंस इज योर ए एंड दिस डिस्टेंस इज योर आर. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा ये. ठीक है, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2. ठीक है, ओके. n कॉइल्स आएगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो लेट्स ओके, एक और जो आपका रूल है राइट हैंड थंब रूल, तो वी अंडरस्टैंड. ठीक है, ये एक बहुत स्टूपिड सा रूल है, आई डोंट नो, मतलब अगर सर्कुलर लूप है तो उस पर अप्लाई करते हैं. तो सर्कुलर लूप में देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है किसी सर्कुलर लूप में, तो हमने भाई साहब बना दिया n. अभी पता नहीं ये कैसा n है. ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में ऐसे बनाया, ये वाले डायरेक्शन में ऐसे बनाया, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल. ठीक है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. और अगर समझ लो सर्कुलर लूप में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये बन गया इसका एक मुंडी और ये बन गया इसका एक टेल. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इट लुक्स लाइक एस. सो दिस बिकम्स द साउथ पोल. ठीक है, क्लियर है? सो दिस रूल गिव्स द पोलैरिटी ऑफ एनी फेस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इफ द करंट अराउंड एनी फेस ऑफ द कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर करंट आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, डायरेक्शन इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल. इफ द करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल. सो अगर भाई साहब आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इट विल बी, तो मतलब देखिए इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप देख रहे हो कि भाई साहब ऐसे जा रहा है ये, तो ये इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, बीच में कर दिया, तो एस बन रहा है, तो साउथ पोल हो गया. अगर ये भाई साहब ऐसे है तो इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, बीच में कनेक्ट कर दिया, तो दिस बिकम्स द नॉर्थ पोल. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. द वैल्यू ऑफ बी इज मैक्सिमम एट द सेंटर. ठीक है, सो आप अगर देखोगे वैल्यू ऑफ बी विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर. मैक्सिमम ऑफ द सेंटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में अगर आप सेंटर पे ले रहे हैं तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? आपका वो तो जीरो हो गया, मतलब डिनोमिनेटर जितना ज्यादा रिड्यूस होगा उतना तो मैक्सिमम होगा ना.
और डिनोमिनेटर कब रिड्यूस होगा? जब भाई साहब आपका r 0 हो जाए, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ b इज मैक्सिमम एट द सेंटर। क्या हो रहा है भाई साहब आपका? ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ b इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड इट डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर। जितना हम भाई साहब सेंटर से दूर जाते रहेंगे वो डिक्रीज होता जाएगा ऑन ईदर साइड ऑफ द लूप। द वैल्यू ऑफ b इज मैक्सिमम एट द सेंटर, इट डिक्रीजेस एज इट वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द ईदर साइड ऑफ द लूप। इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है। ये सेंटर है, आप भाई साहब ये लूप है, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज योर डिनोमिनेटर इज गोइंग टू इंक्रीज। और वैसे भी करंट कैरिंग लूप से आप जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिज्म तो उतना डिक्रीज होता ही जाएगा। आपका एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये उसका सेंट्रल एक्सिस है, आप भाई साहब इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, योर मैग्नेटिज्म इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। द मोमेंट यू कम टू द सेंटर, द डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वहां पे r स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी द मिनिमम। और जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, न्यूमेरिकली तो आप देखोगे ये आपका सेंटर वाला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरफ जाओगे तो भी कम हो जाएगा, इस तरफ जाओगे तो भी कम हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ b इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड इट डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन ईदर साइड ऑफ द लूप, ठीक है। ओके, सो आपके भाई साहब क्या क्या फॉर्मूले हो गए देखो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2r। b will be equal to mu naught I by 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन अ सर्कुलर लूप, तो आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, ठीक है। म्यू नॉट I बाई 2r हो गया, ये हो गया आपका म्यू नॉट I a स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। और अगर आपका n लूप्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी भाई साहब n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? जस्ट अ मोमेंटम। ओके, सो बेसिकली पीपल वी हैव लर्नड अबाउट दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर लूप, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्वियसली इन टेस्ला एंड दीज आर बेसिकली डिस्टेंसेज दैट आर मेजर्ड। सो लेट्स do some savalam on this varam peopleam. So the plane of a circular coil is horizontal, it has n turns each of radius 8 centimeter, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब कितने टर्न्स हैं? n की वैल्यू कितनी हो गई? 10, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम हैज अ रेडियस इज हाउ मच? 8 centimeter, so we can write it as 8 into 10 raised to minus 2 meters. A current of 2 amperes flows through it. The current appears to flow clockwise from a point above the coil. तो above the coil आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। So let's say if we look at the coil, it flows clockwise. So current is flowing clockwise. So ये direction हो जाएगा भाई साहब, clockwise अगर direction है, ठीक है। Appears to flow clockwise from the point. Find the magnitude and direction. तो direction कैसे पता करेंगे भाई साहब बताइए? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज है तो आपका देखो इस तरह से है ना ये, तो इसको ऐसे खींचिए ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे खींचिए ऐसे, और ये ज्वाइन कर दीजिए, तो ये साउथ पोल। ऊपर से आपको साउथ पोल है, नीचे से आपका नॉर्थ पोल है, तो मतलब ये कॉइल के उस फेस में नॉर्थ पोल है और इस फेस में साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो वेयर इज दिस डायरेक्शन? टूवर्ड्स यू। देखो ये एक सर्कल है ना, ये लूप है, ठीक है। यहां पे इस साइड में क्या है? साउथ पोल। लेकिन अगर तुम इधर से देख रहे हो तो तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, इधर आ जाओ तो क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मतलब तुम अगर इधर खड़े रहे तो नॉर्थ पोल, इधर खड़े रहे तो साउथ पोल। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक होगा? नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ मतलब तुम ऐसे जा रहे हो ना भाई साहब, ठीक है। तो वेयर इज इट गोइंग? टूवर्ड्स यू, इट इज टूवर्ड्स यू ना, आउटसाइड। आउटसाइड बोल सकते हैं। आउटसाइड मतलब क्या हो जाएगा? डॉट या क्रॉस? डॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो पहले डायरेक्शन हो गया, ओके। अभी हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन ऑफ कोर्स, ठीक है, अपॉन 2r, ओके। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई 2। ये बहुत बेकार लगता है यार मेरे को। 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7
इंटू आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10 अपॉन 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, आर बच्चा बॉडी कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻², ये आपका कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 2 8, सो ये हो गया आपका कितना 0.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये -2, सो 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 प्लस 1 दैट इज 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, सो दैट्स हाउ इट विल, हाँ पाई आएगा भाई साहब, सो दिस विल बी बेसिकली पाई 10⁻⁻4, सो आपका 3.14 इंटू 5, सो 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ पे -7 प्लस 1 -6 -2 दैट इज -4, 5 इंटू पाई 3.14 इंटू 5 ना 1.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। एज द करंट फ्लोज क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम अबव द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, आपका भाई साहब एज द करंट फ्लोज क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम अबव द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा हो जाएगा भाई साहब, आपके नॉर्थ से साउथ है ना, ये ऐसा ले लो, ये ऐसा भी ले लो भाई साहब, ये अगर ऐसे करोगे तो ये इस तरफ है ना भाई साहब, इस तरफ जाओगे तो इस तरफ है, इस तरफ जाओगे तो इस तरफ है, नॉर्थ साउथ पोल हटा दो भाई साहब, ऐसे ही कर लो, राइट हैंड टर्म रूल बेटर होगा, ठीक है। तो इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाले सवाल करनी है तो करनी है भाई साहब, क्या इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है 5.11 इंटू 10⁻⁻11, तो आपका यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 5.11 इंटू 10⁻11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज 6.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, दिस इज बेसिकली पर सेकेंड हो गया ना, हर्ट्ज मतलब होता है आपका पर सेकेंड, सो दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, तो आपका भाई साहब कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, तुम्हारा सर्कुलर कॉइल में फॉर्मूला क्या है, सेंटर में B इज इक्वल टू μ0I/2R, ठीक है, μ0I/2R है, ठीक है, μ0I/2R है। यहाँ पे तुमको μ0 मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, R तुमको मालूम है 5.11 इंटू 10⁻⁻11, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I, ये I को ही फाइंड आउट करना है। I बेसिकली होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम है भाई साहब, ठीक है। तो चार्ज आपका कितना है, देखो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻9, आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतनी बार घूम जा रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब इतनी बार घूम जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आई कितना हो जाएगा भाई, एक सेकंड में इतने बार घूम रहा है, तो एक सेकंड में भाई साहब कितनी बार घूम रहा है, ये 6.8 इंटू 10⁻15, तो हर एक के लिए इसका आई कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू बोलो NE/T, है कि नहीं, तो T है आपका पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6.8 इंटू 10⁻15 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻19, तो दिस विल बी बेसिकली योर एम्पियर्स, है ना, कूलम पर सेकेंड हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये दिस विल बी, चलो यहीं पे निपटा लेंगे इसको, तो ये हो गया आपका 6.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4, नाउ लेट्स डू दिस हियर, B इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 6.8 इंटू 1.6 इंटू ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 भाई साहब, म्यू का 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये दोनों इधर से आ रहे हैं भाई साहब, इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू R, तो 2 इंटू R इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2 इंटू 5.11 इंटू 10⁻11, 2 5 ज़ा 10 ले लो, मामला ख़त्म करो भाई साहब, ठीक है, तो आपका एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 13.4 टेस्ला, ठीक है। सो दिस विल बी द
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एट द सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, तो सेंटर ऑफ द ऑर्बिट में इतना हो जाएगा भाई साहब, एंड इट विल बी डायरेक्टेड इनसाइड और आउटसाइड एज एप्लीकेबल, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम डाइपोल मोमेंट कैसे होगा यार? चलिए भाई साहब इसको करना है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो वी कैन से दैट ए की वैल्यू यहाँ पे या आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इसका स्पीड कितना है भाई साहब आपका 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस बेसिकली द स्पीड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट, आपको भाई साहब पहले इक्विवेलेंट करंट को निकालना पड़ेगा। इसके पहले वाले में आपने करंट कैसे निकाला, करंट को आपने निकाला भाई साहब NE बाई टी, है ना। अच्छा एक बार बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, टी बोलते रहे भाई साहब, ठीक है। NE बाई टी, तो E की वैल्यू कितनी हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, नहीं N वो, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो तुम, केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, ठीक है। MBR N वो सब में नहीं घुसना है। N यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तुम्हारा कितना हो रहा है, देखो द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट, आपको यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो N को फाइंड करना है या टाइम पीरियड को फाइंड करना। टाइम पीरियड कितना होता है बोलो, टाइम पीरियड होता है आपका 2πr अपॉन n, ये होता है, ठीक है। भाई देखो एक अगर लेट्स से एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन में भाई साहब आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज t, ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड। और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, दैट इज 2πr। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 2πr अपॉन टाइम टेकन दैट इज टाइम पीरियड t, है कि नहीं। और 1 बाई टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, फ्रीक्वेंसी, तो 2πrn इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इक्वल टू v अपॉन 2πr, लिख सकते हैं बोलो v अपॉन 2πr, यही n की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार वो घूम रहा है, एक सेकंड में वो कितनी बार घूम रहा है, सो दिस विल बी v अपॉन 2πr इंटू e की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सो ये तो आपका 1 सेकेंड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। e की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यार, so this will be 1.6 into 10⁻⁻19। so if we happen to solve this, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.2 into 10⁻6 into 1.6 into 10⁻⁻19, 2π की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 into 3.14 into r that is how much 0.5 into 10⁻⁻10, ये लंबा चौड़ा भाई साहब वैल्यू आया, ये हो जाएगा आपका I, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ I। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, नहीं यहाँ पे क्या होगा L, वो तो होता है जब दो इक्वल चार्जेस हो। सी डाइपोल मोमेंट दो तरीके से होता है आपका भाई साहब, दो इक्वल चार्जेस हो, मतलब Q, ये दो, यहाँ पे एक प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, लेट्स से दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ L, तो इट विल बी Q इंटू L। व्हाट इफ दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा Q, यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू, नहीं I इंटू ए होगा, ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा I इंटू ए। यहाँ पे क्या है भाई साहब πr² होता है, ठीक है। I आप निकाल चुके हैं, निकालेंगे जब निकालेंगे, ठीक है। इंटू हो जाएगा आपका πr², तो एक सहूलियत ये है कि ये पाई और वो पाई कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक r और r भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हियर यू कैन फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू μ0
आई बाई 2r, ठीक है, मैं 2r, सो म्यू नॉट आई, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा आई का वैल्यू अपॉन 2r, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, बाकी तो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका टी निकाला हुआ है, टी निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे चार्ज बाय टाइम तो दैट विल बी इक्वल टू 1.12 इंटू 10⁻⁻3। आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे, सॉरी, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका I इंटू ए, दैट इज I इंटू पाई आर का स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी म्यू नॉट I बाई 2r, दैट गिव्स यू 14.07 टेस्ला, ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।